ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਆਫ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਨੌਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿੱਤਾ। भारत नेट न्यूज सवाल आपका तो राजेश भारद्वाज की खास रिपोर्ट। वैसे ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਆ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨਿਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਐਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਨੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। सर मैं जसपाल सिंह लाइफ टाइम प्रेजिडेंट अनमोल स्पोर्ट्स क्लब सुजानपुर। अज साडा यूनाइटेड फ्रंट का 9वां रेजिंग डे मनाया जा रहा है और साडे इलाके दे बहुत ही ज़्यादा सूरबीर कहांगे जिन्ने भी है साडे जवान है, सूरबीर ही है, सारे इकट्ठे हुए है, जिहदे साडे सीनियर ब्रिगेडियर प्रहलाद जी, सलारिया साहब और चिब साहब और कैप्टन पृथ्वी जी और सूबेदार मेजर कुलवंत सिंह जी, बलदेव सिंह जी और साडे काफ़ी जो साडे सीनियर है उन्होंने शिरकत की है। और इसका आगाज़ जोड़ा वो 2015 के विच साडा पठानकोट की तरफों कार दे पुल ते शुरू किया गया सी। उस वक्त असी इहदे नाल सेवा जुड़े हैं और मेन साडा अज दा मतलब यह है कि जो हुण 14 तरीक नूं पटियाले एक कर्नल साहब के नाल पुलिसिया ने जो वारदात की है वह भी रोस अज प्रगट किया गया है। और ये एक साडे वीर जवान जो दिन रात देश की सेवा करते बार्डर पर खड़े है, उन्होंने अगर ये हाल होंदी है फिर आम जनता का की हाल होगा। अभी कहना भी इदां दे और जोड़े पुलिसी है वो भी एक बेल्ट बंद है, पर आर्मी की ट्रेनिंग और पुलिस की ट्रेनिंग के बहुत फर्क है। जो सीधे अफसर भर्ती जाते हैं पुलिस के उन्होंने काफ़ी खिडारी भी होंगे है जिन्होंने ट्रेनिंग का तो घट मौका मिलता है और डिसिपलिन के भी उन्होंने इन्ना। और कर्नल जोड़े गया वो किन्नी रैंक दे है और किन्नी उम्र दे है वो किया गया, बहुत बुरी गल है। मैं और अपने टीम के नाल सारिਆਂ ਦੀ निखेधी करदा। भारत माता की जय। मैं कैप्टन बलबीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमें पंजाब के जहाँ एक्स सर्विसमैन जो है वो अपना रेजिंग डे मना रहे हैं। उन्होंने कल हमें मैसेज दिया था कि आप ज़रूर आइए, तो हमारी 12 आदमी की टीम जो है जहाँ पर आई है और इनका हम बड़ा बड़ा थैंक्स करते हैं और इनको कंग्रेचुलेट भी करते हैं कि चलो रेजिंग डे के ऊपर आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। पंजाब के आने से पहले आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि 13 जनवरी जब लोहड़ी का त्यौहार था तो हमारे जम्मू में एक सूबेदार साहब और एक हवलदार साहब के साथ वहाँ ही बख्शी नगर के SHO ने ऐसा मिसबिहेव किया, जैसे उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया कि हम
एक्सर्समैन हैं, तो उनको पता नहीं क्या एनर्जी हो गई है कि वहाँ से उन्होंने उनके साथ मारकटाई शुरू कर दी, अपनी फोर्स और बढ़ा दी। नेक्स्ट डे भी उनके साथ मिसबिहेव किया। जब कोर्ट में गए तो तब उनकी होश ठिकाना आई और हम लोगों ने उसका केस इतने ज़ोरों शोर से चलाया कि वहाँ पर उनको सस्पेंशन जो ऑर्डर है वो तो गवर्नमेंट का ऐसे देना पड़ता है इनको कि थोड़ा सा इनको साइड स्टेप कर दो। मैं तो बोलता हूँ जो ऐसे अफसर, जो ऐसा SHO, जो इंस्पेक्टर जो ऐसा काम करता है उसको डिसमिस कर देना चाहिए फौज से, और उनको छोड़ना नहीं चाहिए कि ऐसे एक सूबेदार साहब और एक हवलदार के साथ ऐसा मिसबिहेव करें। और ये तो कर्नल साहब की, मेम साहब का कल हमने स्टेटमेंट देखी तो हमारे रूह जो है वो अभी भी ऐसे हो गए हैं कि जैसे हम करगिल युद्ध के बीच में खड़े हैं। वो मेम साहब बोल रही है कि मेरे कर्नल साहब सर्विंग में है, उनका बेटा उसके साथ है, उसके बेटे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि मेरा फादर जो है वो कर्नल में एक नौकरी में कर रहे हैं और उनके साथ ये मिसबिहेव हो रहा है। और जहाँ पर भी वही पुलिस ने कर दिया कि इनको सस्पेंस ऑर्डर कर दो और थोड़े दिन अटैचमेंट कर दो, कोर्ट इंक्वायरी बैठा दो। ये क्या बात हुई? आपको पता कि कर्नल साहब को कहाँ से कैसे स्ट्रगल करके कहाँ पहुँचना पड़ता है, और फिर ओवरऑल जो है निब्रो कंट्री जितनी भी हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका। तो हम अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, खास करके मैं डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी से ये अनुरोध करता हूँ, और हमारे होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं या प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे केस अगर फौज के साथ होते हैं तो इन आदमी को डिसमिस फौज सर्विस से कर देना चाहिए कि आइंदा एक एग्जाम्पल रहे कि फौजी आदमी के साथ हाथ लगाने का क्या नतीजा पड़ता है। और एक रिसेंटली हमारे पास अभी ECHS की पॉलिसी आई है 2-4 दिन पहले कि एक ECHS जंगलोट, पठानकोट और हिमाचल के जितने भी एक्सर्समैन वहाँ से रेफर बनाकर पठानकोट हॉस्पिटल में आए, जहाँ पर इनको स्पेशलिस्ट देखेगा मेडिकल का, सर्जिकल का। ये तो हम हैरान हो गए हैं इस चीज़ के लिए कि एक्सर्समैन का कंट्रीब्यूशन पैसा होता है, हर महीने इसका पैसा इकट्ठा होता है, इनके पास जाता है, और आप इनको दर कर रहे हैं। हमारे तो फार फ्लंग एरिया कहते हैं, 100 किलोमीटर दूर से आते हैं लोग, वो एक दिन आने में लगाएंगे, दूसरे दिन पठानकोट में आएंगे, तीसरे दिन फिर रेफर लेकर पैनल हॉस्पिटल में जाएंगे, तब तक वो मर भी जाएगा। तो मैं हॉस्पिटल के कमांडर साहब को और ECHS को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे पहले चल रहा से चलने दें। हाँ, जो आपने वेरीफाई करना वो वेरीफाई कीजिए, पर एक्सर्समैन को ऐसे मिसबिहेव मत कीजिए और उनको अपने मरने पर मत छोड़ दीजिए। देखिए, मैं मनोहर सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट JK एक्सर्स वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। आज हम अपनी तरफ से, मेरे साथ वाइस चेयरमैन कैप्टन बलवीर सिंह साहब हैं, हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं सूबेदार मेजर वर्मा साहब हैं, सूबेदार मेजर हमारे राम स्वरूप शर्मा साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे कैप्टन इसरोटिया साहब हैं, और भी जो हमारे साथ आए हुए हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यूनाइटेड फ्रंट जो एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन पठानकोट है, इनके नाम में जो ये आज अपना रेजिंग डे मना रहे हैं, उसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हमारे देश में ये जो हालात बने हुए हैं, जो अभी आपने रिसेंटली देखा है कि 13 तारीख और 14 की रात को जो जिस तरीके से हमारे एक सेवारत कर्नल जो पुष्पेंद्र सिंह साहब थे, उनके साथ जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने ब्रूटल जो अटैक किया है, उससे जो है मन जो बड़ा दुखित होता है कि जो लोग इस देश की सेवा करते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं और इस देश की सुरक्षा के लिए हंसते हंसते बलिदान दे देते हैं, और उनके लिए उन्हीं के देश में पुलिस द्वारा इस तरीके का व्यवहार करना, और इस तरीके का ये व्यवहार नहीं, मैं कहता हूँ कि ये तो इस तरीके का ट्रीटमेंट तो मिलिटेंट के साथ भी नहीं करते हैं ये पुलिस वाले। और इस तरीके का व्यवहार जो ये पंजाब पुलिस जो कहते हैं ना, हम अपने घर में अगर महफूज नहीं हैं तो हमारे साथ जो नेबर कंट्री है, जो पाकिस्तान है, जिनको हम इतना चैलेंज करते हैं कि हमने अपना जो ये स्ट्राइक किया, वो किया, तो वो क्या सोचते होंगे? चाइना जो हमारे साथ है वो क्या सोचता है? बांग्लादेश है हमारे साथ, जितने भी जो नियर जो हमारे नेबर हैं, उन कंट्रियों के ऊपर भी इसका प्रभाव जाता है। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात हमें ये लगती है कि इस इतना बड़ा एपिसोड होने के बाद में, इतनी बड़ी घटना होने के बाद में, आज तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कोई भी बयान नहीं आया। और ख़ास करके हमें अपने जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, हम चाहते हैं कि उन्होंने इसमें इंटरवेन करना चाहिए,
क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि 13 ही जनवरी को जब लोहड़ी का त्यौहार था तो हमारे जम्मू में बख्शी नगर में किस तरीके से जो वहाँ का जो SHO था उसने एक सूबेदार साहब और उसका भाई जो उसके साथ था हवलदार था उसके साथ किस तरीके से उन्होंने भी इसी तरीके का व्यवहार किया था जो आज सेवारत जो हमारे जो कर्नल साहब थे उनके साथ। और मैं ये एक बात और मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ कि कर्नल साहब वो साधारण कर्नल साहब नहीं थे कि किसी झूठ को लीड कर रहे थे, वो एक राह का जो ऑफिस होता है हमारा जो इंटेलिजेंसी का जो सबसे बड़े हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंसी है उसमें सेवारत थे। और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करना और उनका आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड छीन कर लेना, ये तो इसका बड़ी कंस्पायरेसी लगती है इसमें कि इसमें पूरे एपिसोड में इसको बड़ा गहराई के साथ डीपली माइन्यूटली इसकी चेकिंग होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही पंजाब गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से खास करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस जो वारदात ये इस तरीके की हुई है ऐसी घटना को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया जाए, ऐसी मिसाल कायम किया जाए ताकि हमारे ऑल ओवर हिंदुस्तान में कभी भी इस तरीके की घटना ना घटे। इसी के साथ मैं आपका मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत।